لاہور کی تنگ گلیوں میں جہاں شام کا اندھیرا رات کی آغوش میں پناہ لیتا تھا، وہاں ایک لڑکی تھی جو موت کا سایہ بن چکی تھی۔ اس کا نام تھا عائشہ، عمر صرف 17 سال، مگر دل ایسا جیسے کئی جنگیں دیکھ چکا ہو، آنکھیں جیسے خوشی سے بیگانہ ہوں۔ اس کی کہانی عام نہ تھی، یہ وہ کہانی تھی جسے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جس میں گناہ تھا، بے بسی تھی، اور ایک ایسا راز تھا جو اگر کھلتا تو شاید پورا شہر خاموشی کی چادر اوڑھ لیتا۔ عائشہ کی ماں محنت کش تھی، والد بچپن میں دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ ہسپتال کی صفائی کرنے والی عورت تھی جو ہر رات نچلے طبقے کی بدبودار وردی پہن کر دوسروں کی گندگی صاف کرتی اور دن چڑھتے بیٹی کے لیے ایک روٹی کا انتظام کرتی۔ مگر یہ سب کافی نہ تھا۔ غربت کی دیواریں جب دل پر گرنے لگیں تو انسان کے جذبات مسخ ہو جاتے ہیں۔ عائشہ کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ اس کے جوتے پھٹے ہوئے تھے اور یونیفارم 2 سال پرانا تھا۔ شرمندگی نے اس کے اندر کا بچہ مار دیا۔ ایک شام جب اس کی ماں بخار میں تڑپ رہی تھی اور گھر میں 2 دن سے چولہا نہ جلا تھا، عائشہ کی آنکھوں میں ایک جنون سا بھر گیا۔ وہ گلی میں نکلی اور پہلی بار اس نے ایک عورت کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب اس نے موبائل چھینا تو وہ کانپ رہی تھی، سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے سے درد نکال لیا ہو۔ یہ پہلا جرم نہیں تھا، بلکہ پہلی سزا تھی جو اس نے خود کو دی، اس ظالم دنیا سے بدلہ لینے کے لیے۔ چند دن بعد وہ جرم عادت بن گیا۔ عائشہ رات کو برقع پہن کر شہر کے پوش علاقوں میں نکلتی، سگنل پر کھڑی کاروں کے شیشے پر بندوق رکھ کر قیمتی موبائلز اور پیسے چھینتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی شک نہ کرتا، کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی، چھوٹی عمر کی، اور اس کی آنکھوں میں وحشت سے زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ شہر کی مشہور نقاب پوش چور بن چکی تھی، پولیس کے ریکارڈ میں موجود تھی، مگر اس کا کوئی چہرہ، کوئی شناخت نہ تھا۔ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے عائشہ کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ سگنل پر کھڑی ایک کار سے ایک نوجوان لڑکا نام رضا مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا، جیسے کسی کو پروپوز کرنے جا رہا ہو۔ عائشہ نے ہمیشہ کی طرح بندوق نکالی اور موبائل مانگا۔ رضا نے اسے دیکھتے ہی کہا، تمہیں چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں، تم تو ایک پھول جیسی ہو، میں تمہیں اس دلدل سے نکال کر ایک اچھی اور عزت والی زندگی دوں گا۔ یہ سن کر عائشہ کے ہاتھ لرز گئے۔ رضا نے اسے اپنے خوابوں کے حسین جال میں پھنسا لیا۔ اس نے عائشہ کو امیر بننے کے خواب دکھائے، پرتعیش زندگی کا لالچ دیا، اور وعدہ کیا کہ وہ اسے تمام پریشانیوں سے نجات دلائے گا۔ عائشہ، جو کبھی کسی نے اتنی نرمی سے بات نہیں کی تھی، اس کی باتوں میں آ گئی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ایک نئی امید جاگی۔ اس نے چوری چھوڑ دی اور رضا پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی اس کے سپرد کر دی۔ عائشہ کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ رضا کے ساتھ ایک نئے سفر پر نکل پڑی، جہاں اسے لگا کہ اب وہ تمام دکھوں سے آزاد ہو جائے گی۔ ایک دن رضا عائشہ کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ لے گیا کہ وہ اسے ایک نئے اور خوبصورت گھر میں لے جا رہا ہے، لیکن وہ اسے شہر سے دور ایک پہاڑی علاقے میں لے گیا، جہاں ایک ویران کوٹھی میں 3 خوفناک آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ عائشہ کے دل میں ایک انکہی دہشت پھیل گئی۔ رضا نے اسے ان آدمیوں کے حوالے کر دیا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ وہ کچھ دیر میں واپس آئے گا۔ رضا کے جاتے ہی وہ 3 آدمی عائشہ کے پاس آئے اور اسے ٹھنڈے لہجے میں بتایا، تمہیں رضا نے ہمارے ہاتھوں بیچ دیا ہے، اب تم ہماری ہو اور ہم تمہیں آگے بیچنے کا انتظام کر رہے ہیں، تمہاری زندگی اب ہمارے رحم و کرم پر ہے۔ عائشہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، لیکن اس کی آواز ان پہاڑوں میں گم ہو گئی۔ انہوں نے اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا، جہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی، بس ایک خوفناک تاریکی تھی۔ عائشہ کو محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی اب ختم ہو چکی ہے۔ اسے لگا کہ وہ اب کبھی اس قید سے باہر نہیں نکل پائے گی۔
اور उसका मुस्तकबिल तारीख हो चुका है। हर आने वाला लम्हा इस पर भारी गुजर रहा था और उसकी उम्मीद दम तोड़ रही थी। इसी कमरे के कोने में उसे एक और लड़की मिली, नूरीन। नूरीन भी इसी दलदल में फंसी हुई थी। वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी और उसने आयशा की परेशानी भांप ली और उसे बताया कि ये जगह इंसानी स्मगलिंग का अड्डा है और उन्हें यहाँ से किसी भी कीमत पर भागना होगा। नूरीन एक बहादुर लड़की थी और उसने पहले भी भागने की कोशिश की थी। उसने आयशा को चुपके से एक रास्ता दिखाया जो पीछे की तरफ पहाड़ी पर निकलता था। उन्होंने रात के अंधेरे में भागने का मंसूबा बनाया। जब पहरेदार गहरी नींद सो रहे थे, नूरैन ने एहतियात से कमरे का ताला खोला और दोनों आहिस्ता आहिस्ता कोठी से बाहर निकले। वो पहाड़ी रास्ते पर भागने लगी। लेकिन उन आदमियों को उनके फरार का पता चल गया। वो पीछे दौड़े और उन्हें रोकने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। जब वो तकरीबन बच निकलने वाली थीं, तो नूरैन की टांग पर गोली लगी। वो गिर पड़ी, लेकिन उसने आयशा को आवाज दी, तुम भागो, पीछे मुड़कर मत देखना, अपनी जिंदगी बचाओ। आयशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन नूरैन के इसरार पर वो भागती चली गई। इन तीनों आदमियों ने नूरैन को पकड़ लिया। जब उन्हें पता चला कि नूरैन ने आयशा को भागने में मदद दी थी, तो गुस्से में आकर उन्होंने नूरैन की टांग काट दी ताकि उसे दूसरों के लिए इबरत का निशान बना सकें। नूरैन ने अपनी जान और जिस्म का एक हिस्सा आयशा को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया था। आयशा शहर पहुंचकर सीधी पुलिस स्टेशन गई और उसने तमाम वाकया बयान किया। रजा के नेटवर्क, पहाड़ों में इस कोठी और वहां होने वाले तमाम गैर कानूनी कामों की तफसीलात बताएं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और आयशा की मदद से रिजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कोठी पर छापा मारा गया और वो तीनों आदमी भी पकड़े गए, लेकिन इस वक्त नूरैन वहां मौजूद नहीं थी। आयशा को इसका शदीद दुख था, लेकिन उसने कसम खाई कि वो नूरैन को ढूंढकर उसकी मदद जरूर करेगी। 4 साल बाद आयशा अपनी जिंदगी के नए सफर पर थी। उसने खुद को मुकम्मल तौर पर बदल लिया था और अब एक नए शोबे में काम कर रही थी। एक दिन उसे अचानक अपनी माँ की बहुत याद आई और वो अपने पुराने घर लौट आई। जब वो अपने घर पहुंची तो देखा कि उसकी माँ बिस्तर मिर्ग पर लेटी हुई थी। माँ का जिस्म कमजोर हो चुका था और आंखों में जिंदगी की रमक बाकी नहीं थी। आयशा अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। इसने माँ का हाथ पकड़ा और अपने आंसुओं से उसे भिगोने लगी। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, आयशा मेरी बच्ची तो आ गई। आयशा ने कहा, माँ मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी बच्ची वक्त हाथ से निकल चुका है। आयशा ने कहा, मुझे माफ कर दे माँ, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। माँ ने प्यार से आयशा के सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बच्ची मेरी कोई तकलीफ नहीं, मुझे खुशी है कि तू वापस आ गई है। माँ ने उसे बताया कि कुछ अरसा पहले उसने कुछ प्राइज बॉन्ड्स खरीदे थे जो अब अलमारी में पड़े हैं। माँ ने आयशा का हाथ पकड़े ही आखिरी सांस ली। आयशा चीखती रही, रोती रही, लेकिन उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। माँ के इंतकाल के बाद आयशा ने माँ की बताई हुई जगह पर प्राइज बॉन्ड्स तलाश किए तो उनमें से एक पर 1 करोड़ का बड़ा इनाम निकल चुका था। ये आयशा की गैबी मदद थी, किस्मत का वो पलटा जिसने उसकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। आयशा और उसकी माँ की जिंदगी बदल चुकी थी। अगरचे माँ अब दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसका इनाम आयशा के लिए एक नई जिंदगी का पैगाम था। इस रकम से आयशा ने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की और जल्द ही उसका कारोबार कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगा। आयशा अब एक कामयाब बिजनेस वूमन थी। उसने अपनी माजी की तमाम गलतियों से सबक सीखा था और अब वो एक ईमानदार और पुरअज़्म खातून बन चुकी थी। आयशा को हर वक्त नूरैन की तलाश रहती थी।
उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था जब तक वो नूरैन को ढूंढ न ले। कई महीनों और सालों की तलाश के बाद एक दिन आयशा एक दरबार पर दुआ मांगने गई। वो अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरी तो उसकी नज़र अचानक एक भिखारी पर पड़ी। इसका दिल धुक से रह गया। वो नूरैन थी, वहीं दरबार के बाहर बैठी इंतहाई खस्ता हालत में भीख मांग रही थी। ये मंजर देखकर आयशा का कलेजा फट गया। उसे यकीन नहीं आया कि जिस नूरैन ने उसे बचाने के लिए अपनी टांग कुर्बान कर दी थी, वो आज इस हालत में है। आयशा फौरन नूरैन की तरफ बढ़ी और उसे जोर से गले लगा लिया। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। नूरैन को तो याद ही नहीं था कि ये कौन है। वो हैरान होकर आयशा को देख रही थी, जो इसे इतने प्यार से गले लगाए हुए थी। वहाँ मौजूद लोग ये सब कुछ हैरत से देख रहे थे कि इतनी अमीर औरत एक भिखारन से ऐसे मिल रही है। आयशा ने नूरैन को अपनी बाहों में भेजे हुए वहाँ मौजूद सब लोगों को मुखातिब करते हुए बुलंद आवाज में कहा, ये कोई भिखारन नहीं है, ये मेरी मसीहा है। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जिंदगी बचाई थी। आयशा ने नूरैन को अपने घर ले जाया, उसकी देखभाल की, इलाज करवाया और सबसे पहले उसकी मसनूई टांग लगवाई। चूंकि नूरैन एक पढ़ी लिखी लड़की थी, आयशा ने उसे अपनी कंपनी में एक आलीज ओहदे पर नौकरी दी। नूरैन ने आयशा का शुक्रिया अदा किया और नई जिंदगी मिलने पर बहुत खुश थी। आयशा ने अपनी दौलत का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए भी किया। उसने बहुत से यतीम खानों और बेसहारा अफराद की मदद की और अपनी जिंदगी को एक मकसद दे दिया। उसने अपने लिए एक सादा और गरीब लड़का अहमद चुना। अहमद एक नेक दिल और मेहनती इंसान था, जो आयशा की माजी को जानने के बावजूद उससे सच्ची मोहब्बत करता था। उन्होंने एक सादा सी शादी की और एक खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे। आयशा ने अपने माजी के तमाम दुखों को भुलाकर एक पुरसुकून और भरपूर जिंदगी का आगाज किया, जहां उसे सुकून और सच्ची मोहब्बत मिली। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलात आए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तकदीर कभी भी पलट सकती है और नेकी का फल हमेशा मिलता है। सबसे बढ़कर ये कहानी इंसानियत की मिसाल है कि कैसे एक शख्स की कुर्बानी दूसरे की जिंदगी को बदल सकती है और कैसे एक माफ़ करने वाला दिल बदले के बजाय एहसान का बदला चुकाता है। हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को तलाश करना चाहिए जो हमारी मदद के मुस्तहिक हैं और उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी देने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्या आप भी किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसने आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा किया हो?